اردو کی ٹیکسٹ بک ہے جو ہمارے بچے 9th کلاس میں پڑھتے ہیں اس میں کتنی غلطیاں ہیں؟ 170 غلطیاں. 170 غلطیاں. انہوں نے جہاں جہاں بھی لفظ اسکول لکھا ہے وہ الف کے بغیر لکھا ہے. جن کو یہ تمغہ ملا ہوا ہے انہیں بھی نہیں پتا کہ تمغہ لکھنا کیسے. یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اتنا بڑا ادارہ آخر یہ کر کیا رہا ہے؟ آپ زیادہ سختی کر رہے ہیں. اچھا سختی تھوڑی سی کم بات کریں. یہ ہے کہ یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. یہ پہلے ناول نگار ہے اردو کے. ان کی تاریخ پیدائش غلط لکھتی ہے انہوں نے. 10th کی بک تو نہیں ابھی تک پڑھی؟ میں نے نہیں پڑھی. میں نے ناظرین ابھی تک 10th کی بک پہ نہیں پہنچے. وہ 9th ہے. یہ آگے 10th کا بھی نمبر آئے گا. اس نوٹ میں ایک جملہ نہیں ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا جو ہر نوٹ پر ہوتا ہے اس نوٹ پر نہیں. السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز HD کے ساتھ میں ہوں شہود الحسن چغتائی. ناظرین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے خلاف فیصلہ لینے والے شہزاد فیضی میرے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کرنسی نوٹوں میں موجود 6 غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا اور وفاقی محتسب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے خلاف ایک فیصلہ لیا. اب انہوں نے کچھ اور غلطیاں بھی نکالی ہیں، وہ بھی ان سے جانتے ہیں. شہزاد فیضی صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان والا کیس کہاں سے شروع ہوا؟ کیسے آپ کو پتا چلا؟ یہ سب چیزیں کور ہو چکی ہیں. اس کیس کا ابھی رائٹ ناؤ کیا سٹیٹس ہے؟ ابھی تک تو وہ غلطیاں وہیں پہ موجود ہیں. جی ابھی تک تو ٹھیک نہیں ہوئی، تو کیا کرنے والے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں اور آپ کے سوال کا جواب دوں، حضرت فراق گورکھپوری کا ایک شعر سنانا چاہوں گا. ٹھیک ہے. میری گھٹی میں پڑی ہے ہو کے حل اردو زباں. واہ واہ. میری گھٹی میں پڑی ہے ہو کے حل اردو زباں. بہترین. جو بھی میں کہتا گیا حسن بیاں بنتا گیا. کیا بات ہے. تو یہ بس حسن بیان ہی تھا، اور حسن بیان اس وقت تک اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک تلفظ کا، ادائیگی کا اور لفظوں کے صحیح چناؤ کا ادراک نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کہ اردو زبان جو ہے ہماری قومی زبان ہے، اور اس زبان کو قومی زبان کا درجہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا. یہ وہ دن تھا جب پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کراچی میں ہوا، اور یہ 25 فروری 1948 کا دن ہے جب حضرت قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا جو آئین ہے، اس آئین میں بھی قائد اعظم کے انہی الفاظ کا تتبع کیا گیا، اور یہ حکم صادر کیا گیا کہ آئندہ 15 برسوں کے اندر اردو زبان کو تمام سرکاری اور عدالتی جو حساب کتاب ہیں اور جو معاملات ہیں اس کا حصہ بنایا جائے. ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی سے آج تک اس پہ عمل نہ ہو سکا ہے. اب جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کردہ کرنسی نوٹ ہیں، یہ کرنسی نوٹ پوری دنیا میں ہماری شناخت کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کرنسی نوٹوں پر مختصر 3 یا 4 سطریں ہیں، اور تقریباً 20 کے لگ بھگ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. ان 20 لفظوں میں املا اور گرامر کی 6 غلطیاں ہیں. 20 الفاظ میں 6 غلطیاں ہیں. اور کسی کو 70 سالوں میں پتہ نہیں چلا. بس کیا کہا جا سکتا ہے کہ شاید کسی نے توجہ نہیں دی یا اتنی اہمیت نہیں دی گئی. لیکن میرے علم میں کافی عرصہ پہلے سے یہ غلطیاں آ چکی تھیں. ٹھیک ہے. اور میں یہ سوچتا رہا کہ اب کس پلیٹ فارم پہ جاؤں اور کہاں یہ مقدمہ پیش کروں اور کون میری آواز کو سنے گا. لیکن آخر ایک مہربان کے کہنے پر میں نے وفاقی محتسب کی عدالت میں کیس فائل کیا. ٹھیک ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ میں گزشتہ 10 سے 15 سالوں میں مختلف اداروں میں درخواستیں تو دے چکا تھا، لیکن کہیں بھی اس حوالے سے سنوائی نہ ہو سکی. ٹھیک ہے. تو وفاقی محتسب کے پاس جب ہم گئے تو انہوں نے اس کیس کو سماعت کے لیے منظور کیا. بالکل. اسٹیٹ بینک کے نمائندگان کو بلایا گیا، اور وہ نمائندگان جو تھے اپنے ہمراہ کراچی سے اردو کے ماہرین بھی ساتھ لائے. ماہر لسانیات تھے. ٹھیک ہے. وہاں باقاعدہ بحث ہوئی، مکالمہ ہوا، اور میں نے وہاں دلائل دیے اور گرامر کی کتابیں ان کے سامنے رکھیں اور لغات کی
बुक्स जो थी वो उनके सामने रखी। तो ये मुकदमा खुद आपने लड़ा? मैंने खुद लड़ा, कोई वकील नहीं पेश कोई किया, खुद? वकील नहीं था, मैंने क्या खुद ये मुकदमा लड़ा। ठीक है। और बिलाखिर जो वफाकी मोहतसिब थे उन्होंने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला 23/4/2024 को मेरे हक में किया। ठीक है, चौथा और महीना 2024। अब ये हाँ 2025 का दिसंबर आ गया। दिसंबर आ ठीक गया है। और उन्हें पाबंद किया स्टेट बैंक को हम्म कि आप इन गलतियों की तस्हीह करें हम्म, और नए नोट छापें और है। वो गलतियों से मुबर्रा होने बिल्कुल चाहिए। ठीक। लेकिन वो आज तक इस पे अमल दरामद तो नहीं हुआ। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया है। ठीक है। मैं भी मुंतजिर हूँ, देखिए क्या बनता है। अच्छा, अब स्टेट बैंक वाला जो मैटर है वो तो आपका फैसला आ चुका है। अब आप चूंकि वो अभी तक फैसला लेने के बाद भी अमल दरामद नहीं कर रहे, तो उसके लिए फिर मुझे ये मैं देख रहा हूँ कि आप कोई ये क्या करने जा रहे हैं? ये एक रिट पिटीशन है जो मैं लाहौर हाई कोर्ट में दायर करने वाला हूँ। ठीक है। अगले 1 हफ्ते में इसको मैं दायर करूंगा। मैंने इस रिट पिटीशन में लिखा है कि फैसला वफाकी मोहतसिब ने मेरे हक में कर दिया है। ठीक है। उसके बाद नजरसानी अपील का फैसला भी मेरे हक में हो चुका है। अच्छा, नजरसानी अपील में भी गए हैं वो गए थे और वो भी मेरे हक में आ चुका है। ठीक है। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे, तब उन्होंने कहा कि हमने ये केस मुक्तदरा कौमी ज़बान इस्लामाबाद को भिजवाया है, ठीक है। हम उनकी राय लेना चाहते हैं। तो वफाकी मोहतसिब ने कहा कि जो लेटर आपने मुक्तदरा कौमी ज़बान को भिजवाया है उसकी कॉपी हमें दें। ठीक है। उस पर ज़बानी वादा तो किया उन्होंने, लेकिन अब 6 माह गुजरने के बावजूद वो उस लेटर को भी ना वहां पहुंचा सके। यानी टाल मटोल से काम ले रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये इसको बगैर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ये करेंगे। ठीक है। और मैं चलिए, ये आपका हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब आते हैं, आपने कुछ उर्दू की कोई हमारी टेक्स्ट बुक्स है जी, उन पर आप आजकल काम कर रहे हैं, वो क्या काम है? असल में ये एक इत्तेफाक था कि मेरी जो जमात नौम की किताब है 2025 में शाया की गई पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर में, ये उर्दू की किताब थी जो अचानक मेरी उस पर नजर पड़ी तो मुझे कुछ गलतियां नजर आई। ठीक है। मैंने वो किताब खरीद ली और फिर मैं घर गया और मैंने जब उसे तफसीलन उसका मुताला किया तो मालूम हुआ कि इस किताब में ग्रामर, इमला और शायरी की 170 गलतियां हैं। ठीक है। तो 170 गलतियां। कौन सी एक बुक है ये? उर्दू की किताब है, नौम जमात की, नौवीं जिसे हम कहते हैं, नवीं जिसे कहते हैं, 9वीं क्लास की जी, नाइन्थ क्लास की जो उर्दू की टेक्स्ट बुक है, जो हमारे बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं, उसमें कितनी गलतियां हैं? 170 गलतियां। 170 गलतियां। मेरे लिए बहुत हैरान कौन है ये कि ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इतना बड़ा इदारा आखिर ये कर क्या रहा है। ठीक है। ये बच्चे तो अच्छा, वो है आपके पास इधर कॉपी है उसकी? जी हाँ, मेरे पास कॉपी है। वो बताएं हमें जरा, हम नाजरीन को दिखाते हैं। और इस पर आपने कोई, जिस तरह आपका तरीकाकार तो वही, आप पहले लिखते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट जी, तो किस कंसर्न डिपार्टमेंट के पास गए? मैंने वफाकी वजीर तालीम को लिखा। वफाकी वजीर तालीम। और सूबाई सिकंदर साहब जो है, राना सूबाई वजीर तालीम। और फिर पंजाब टेक्स्ट बुक के चेयरमैन को लिखा। ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन को लिखा और फिर मरियम नवाज वजीर आला पंजाब को लिखा। तीनों को आप, फोर्थ जो? जी हाँ। ठीक है। सीएम साहिबा को भी लिखा? जी हाँ, और मुझे उनकी तरफ से जवाब भी आया। और अच्छा, सीएम साहिबा ने जवाब भी दिया आपको? मुझे जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बड़ी दिलचस्प नोयत का जवाब है। उन्होंने ये मुझे 1 या 1.5 माह के बाद जवाब दिया कि आपके इस मसले को हल कर दिया गया है। अब इस जवाब का मीडियम क्या है? आप तक ये जवाब कैसे पहुंचा? कोई मुझे मैसेज आया। अच्छा, मैसेज आया। मैसेज हम दिखा भी देते हैं। ठीक है। अपने नाज़रीन उनके पोर्टल की जानिब से। ठीक है कि आपका मसला हल कर दिया गया। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ किया गया, कैसे हल हुआ। नाजरीन, ये मेरे हाथ में मौजूद है उर्दू की जो नहम जमात की किताब है, यानी 9th की टेक्स्ट बुक है, जो हमारे बच्चे, जो नौजवान बच्चे हैं 9th में पढ़ते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड का हिस्सा है ये। उसमें मौजूद 170 गलतियां हैं। फैजी साहब ने इसका किया क्या है कि नंबर शुमार भी बनाया है, फिर आगे गलती किसी जुमले में है या नाम में है, फिर मुसन्निफ यानी दुरुस्त क्या है वो भी लिखा है कि ये है गलत, इसको दुरुस्त होके ये होना चाहिए, ऐसा ही है सर। इसके बाद आपने सफ़ा नंबर भी मेंशन किया है और 70 तक मेंशन कर दी है कि ये उस लाइन पर गलती मौजूद है। अच्छा, अब मैं इसको खोलता हूँ और एक रैंडम गलती पकड़ता हूँ। इस रैंडम गलती में
میں او ہو اچھا، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے. اب یہ فیضی صاحب 115 نمبر ہے جی بلوچستان یونیورسٹی. جی اب اس میں آپ نے غلطی یہ نکالی ہے کہ یہ غلط ہے. غلط. یونی الگ آئے گا اور ورسٹی الگ آئے گا. یہ املا کا قانون ہے. اچھا، ماہر لسانیات کے مطابق اس لفظ کو یونی الگ لکھنا ہے، ورسٹی ورسٹی الگ 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 لکھنا ہے. لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اچھا املا جی، کی غلطی ہے. املا کی. اچھا، مسدس کے اوپر شد نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. یہ تو خیر چھوٹی غلطی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہے ابتدا میں جو پہلا صفحہ ہے مصنف ڈاکٹر علی محمد خان، ٹھیک ہے. مصنف یعنی جو یہ اس رائٹر. کتاب کے مصنف ہیں. ٹھیک ہے. یہ مصنف لکھنا ہی غلط ہے. مصنف دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تصنیف کرنے والا. ٹھیک ہے. یعنی جو شخص اپنے تخیل کے زور پر از خود پوری کتاب تحریر کرے اسے مصنف کہا جاتا ہے. اچھا، یعنی جس کی اپنی کتاب. اپنی کتاب. اچھا، ٹیکسٹ بک کا مصنف نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، وہ ہے مرتب. ہاں، اس نے ترتیب دیا ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کی کتاب لکھی ہے تو وہ مصنف. وہ مصنف ہیں، ٹھیک یہ ہے. مرتب ہے. اچھا، یہی پہلی غلطی آپ نے پہلی وہ غلطی. پکڑ لی. کیا اور بات. دوسری غلطی آپ یہ دیکھیے، یہاں ایک نام لکھا ہے ڈاکٹر نجیب جمال، ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے تمغہ امتیاز. ٹھیک ہے. اب یہ تمغہ کا املا غلط ہے. تمغہ ٹرکش لفظ ہے اور یہ ہائے مختفی کے ساتھ نہیں، یعنی آخر میں ہے نہیں آئے گا، الف آئے گا. تمغہ الف آئے گا. الف آئے گا. اور انہوں نے، اب یہ ٹیکسٹ بک ہے، جن کو یہ تمغہ ملا ہوا ہے انہیں بھی نہیں پتا کہ تمغہ لکھنا کیسے ہے. لیکن وہ ماہر لسانیات تو نہیں، بلکہ ہاں شاید وہ ڈاکٹر نجیب وہ جمال پی ایچ ڈی ہیں، ماہر لسانیات ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ اس پر غور فرمائیں اور یہ غلطیاں جو ہیں انہیں درست فرمائیں. اب علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ بھی سن لیجئے. جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر. ٹھیک ہے، بڑا مشہور شعر ہے. اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. ٹھیک ہے. اب یہ بے وزن ہے. یہ لفظ جبریل لکھا ہے، اصل میں یہ جبرائیل ہے. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. اگر ہم جبریل پڑھیں گے تو یہ بے وزن ہو جائے گا. بہترین بہترین. میں چند ایک آپ کو بھی، تمام تو نہیں میں دکھا سکتا، یہ سنا سکتا. 170 غلطیاں ہیں. اب مثال کے طور پر، اچھا آپ نے 10th کی بک تو نہیں ابھی تک پڑھی؟ میں نے نہیں پڑھی. میں نے ناظرین ابھی تک 10th کی بک پہ نہیں پہنچے، وہ 9th ہے. یہ ابھی 10th کا بھی نمبر آئے گا. اچھا، اب اس میں ایک شاعرہ ہے پروین فنا سید، ان کا کلام ٹھیک ہے 9ویں جماعت کی کتاب میں ان کی غزل ہے. ان کا ایک مصرع بھی غلط ہے، لیکن جب تعارفی نوٹ لکھا یہ مصنف صاحب نے، ڈاکٹر علی محمد خان صاحب نے، جسے مرتب کہنا چاہیے، جسے مرتب کہنا چاہیے، انہوں نے مصنف لکھی. انہوں نے اس میں تعارفی نوٹ میں لکھا کہ پروین فنا سید کو بچپن سے ہی لیڈی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا. ٹھیک ہے. ارے بھائی، جب وہ ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر، یہ لیڈی لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ لیڈی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا؟ اچھا، اگر لکھ دیا جائے تو غلط کیسے ہے ڈاکٹر؟ آپ یہ صاحب یہ تو اب آپ زیادہ غلطیاں نکال رہے ہیں، بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. بہانہ نہیں. اب مثال کے تو کوئی مرد، اگر کوئی نوجوان مرد ہو اور وہ ڈاکٹر بننا چاہے تو کیا وہ یہ لکھے گا کہ وہ مرد ڈاکٹر بنے گا؟ ہاں بات تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے. اسی طرح لیڈی انجینئر بھی نہیں ہو سکتا، لیڈی ڈاکٹر بھی نہیں کوئی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیڈی پائلٹ بھی، لیڈی پائلٹ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لکھنا کہ وہ لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، غلط ہے. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، میں مان گیا، لیکن آپ زیادہ سختی کر رہے ہیں. اچھا، سختی تھوڑی سی کم. بات یہ ہے کہ یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، ہمیں سختی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک لفظ ہے اسکول. اب یہاں انہوں نے یہ صفحہ نمبر 45 ہے، سطر نمبر 4 پر لکھا ہے سینٹرل ماڈل اسکول. اسکول جو ہے نا، یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے. اس کو جب ہم اردو میں لکھیں گے تو سین سے پہلے الف لکھنا پڑے گا. اسکول لکھنا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو زبان کا کوئی بھی لفظ ایسے حرف سے شروع نہیں ہو سکتا جس پر کوئی زیر زبر یا پیش نہ ہو، یعنی متحرک لفظ سے شروع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور ہر لفظ کا اختتام سکون والے لفظ حرف پر ہوگا، یعنی کہ ایسے حرف پر ہوگا جس پر زیر زبر پیش نہیں ہوگا. اس لیے اسے متحرک کرنے کے لیے ہمیں الف لکھنا چاہیے. انہوں نے جہاں جہاں بھی لفظ
स्कूल लिखा है वो अलिफ के बगैर लिखा है, और ठीक ये है, इमला इमला की की बहुत बड़ी गलती है। डन, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आगे देखिए, इसमें एक मजमून है इस किताब में, हाँ, और वो जर्नैली सड़क से लिया गया है, ठीक है, जीटी रोड, जीटी रोड। ठीक है। ये एक किताब है असल में अ, रजा अली आबिदी साहब की, हम्म, और वो इत्तेफाकन मैंने असल में पढ़ी हुई थी किताब, पहले से पढ़ी, पहले से। ठीक है। मैंने जब वो मजमून इस किताब में देखा, हम्म, जो उन्होंने लिया था इक्तबास इस किताब से, हम्म, उसे मैंने पढ़ा, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा तजाद नजर आया। उसकी वजह ये थी कि रजा अली आबिदी अपनी असल किताब में ये लिखते हैं हम्म, कि ये जर्नैली सड़क पेशावर से शुरू होती है हम्म, और कलकत्ता तक जाती है, और इसकी लंबाई 1500 मील है। ठीक है। ठीक है, हम्म, लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि ये सड़क काबुल से शुरू होती है और हम्म, बांग्लादेश तक जाती है, और इसकी लंबाई जो है 3600 किलोमीटर है। जिस किताब से आप ये इक्तबास ले रहे हैं, उस उसमें ऐसा किताब नहीं है। का मुसन्निफ जो बीबीसी में उस वक्त मुलाजिम था, हम्म, और उन्होंने पूरा 1 महीना इस सड़क पे गुजारा, और उन्होंने ये भी लिखा कि जब मैं पेशावर पहुंचा इसी सड़क पे, इसी सड़क पर, हम्म, तो मैं इसका संगे मील तलाश करना चाहता था कि ये कहीं से आगाज तो हो रही हाँ, है, हाँ, तो वो जो संगे मील है जिससे ये आगाज होती है, मैं वहां तक पहुंचूं। बिल्कुल ठीक। आखिर वो एक पत्थर कहीं गिरा पड़ा था, वो मैंने सीधा किया, तो उस पे 0 बना हुआ था, वाह जी वाह, यानी यानी संगे कि ये इब्तदाइया, सड़क यहां से शुरू होती हम्म, थी और कलकत्ता तक जाती थी। ठीक है, वहां इंडिया, एक बॉटेनिकल गार्डन था जहां तक उन्होंने इस सड़क पर बस में सफर किया। इसको बढ़ा दिया, इसका फासला बढ़ा दिया, और ये कहीं से कहीं तक पहुंचा दी, जबकि वो अपनी असल किताब में कुछ लिख रहे हैं और ये ठीक कुछ है, कह रहे हैं। इसी तरह डिप्टी नजीर अहमद, ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनका जो अदबी कद्दो कामत है वो हैरान को। पहला नॉवल निगार उर्दू ये का, पहले नावल निगार है ठीक उर्दू है, के। उनकी तारीख पैदाइश गलत लिख दी है इन्होंने, तारीख। वो कहाँ लिखी है जी, वो तो दिखाएं जरा। वो भी डिप्टी नजीर अहमद साहब की तारीख पैदाइश गलत लिख दी है, जो कि उर्दू के पहले नॉवल निगार है जी। अब ये इन्होंने लिखा 1836 में वो पैदा हुए हैं और 1912 में वफात पाई है, ठीक है। जबकि दुरुस्त तारीख पैदाइश 1830 है। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो यही पढ़ेंगे जो इन्होंने लिखा है। इन्होंने अब उनके बारे में लिखते हुए कई जुमले गलत लिखे हैं। मिसाल के तौर पे अब लिखते हैं कि डिप्टी नजीर अहमद बचपन ही से डिप्टी कलेक्टर बनने का जो उस जमाने में बहुत तरक्की याफ्ता ओहदा ख्याल किया जाता था, ख्वाब देखते थे। कितना बेतुका ये जुमला इन्होंने बनाया है, बेतरतीब। इसको लिखना ये चाहिए था कि डिप्टी नजीर अहमद बचपन ही से डिप्टी कलेक्टर बनने का ख्वाब देखते थे, जो उस जमाने में बहुत तरक्की याफ्ता ओहदा ख्याल किया जाता था। बिल्कुल ठीक है। अब फिर अगला जुमले में लिखते हैं कि इब्तदाई तालीम अपने घर ही में अपने वालिद से जो गांव में बच्चों को पढ़ाया करते थे हासिल की। अब हासिल का लफ्ज कहाँ है, इब्तदाई तालीम कहाँ है? हासिल पहले ठीक है। इसको ऐसे लिखना चाहिए था कि इब्तदाई तालीम घर ही में अपने वालिद से हासिल की, जो गांव के बच्चों को पढ़ाया करते थे। बिल्कुल ठीक। तो ये इस तरह के बेतुके जुमले, और जिनसे ये ख्याल आता है कि ये लिखने वाले कौन लोग हैं आखिर, और ये पढ़ाना क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बनेगा और वो क्या सीख पाएंगे, हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं। अच्छा सर, ये सारी चीजें मैं इसमें मेंशन भी कर देता हूँ। और मुझे ये बताएं कि जब आप पहले गए हैं यानी वजारत तालीम यानी वजीर तालीम साहब को, जब आपने सूबाई वजीर तालीम को उनको एप्लीकेशन दी है, दी है, तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया? उनकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं आया। ठीक है। अगर हम जाते हैं फिर आप सेक्रेटरी एजुकेशन के पास गया हूँ, उनकी तरफ से आया? उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं चेयरमैन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास गया हूँ, उन्हें यानी कि एप्लीकेशन दिया, उनकी तरफ से मुझे कोई जवाब तरफ से नहीं। और मैडम ने, सीएम साहिबा ने आपको रिप्लाई कर दिया? उन्होंने मुझे रिप्लाई कर दिया, मसला हल है। उन्होंने कह दिया कि आपका मसला हल कर दिया गया है। बिल्कुल, आप इजी होके बैठ। लेकिन मैं अभी तक इस मखमसे में हूं कि इस जुमले को मैं क्या समझूं। अगर वो कर दिया गया है तो मेरे इल्म में क्यों नहीं है, या उनका अमला जो है वो उन्हें क्या जवाब देता है।
वो तो जाहिर है उनको ये बता दिया उन्होंने कि ये मसले हल कर दिए सब गए अच्छा है हैं, कि सब रिपोर्ट अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, तो इस हम्म तरफ तवज्जो देने की जरूरत है और ये जो गलतियां हैं इन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, आप ये एक और चीज भी लेके आए हुए, मुझे ये भी थोड़ा सा लास्ट बट नॉट लीस्ट है कि ये 1 रुपए का पुराना करेंसी नोट और ये ये भी आपने पुराना नोट है। दो, असल में ये मैं ये दिखाना चाहता हूँ, हम्म, अगर ये कैमरा मैन इसे हो क्लोजअप जाएगा, ले सकें। ठीक है। इस नोट में एक जुमला नहीं है हम्म, कि हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, जो हर नोट पर होता है इस नोट पर नहीं। 1 रुपए के पुराने करेंसी नोट पर ये नहीं है। जुमला नहीं है। ओके। आखिर क्यों? मैं अब इसका बताता हूँ क्यों। हम्म इसका जवाब ये है कि ये जितने भी हमारे पास करेंसी नोट हैं, हम्म 500 रुपए का, 50 रुपए का, या 1000 रुपए का, या 5000 रुपए का, हम्म, ये सब नोट असल में रसीदें हैं। ठीक है। ये रसीद की सूरत में है। हम्म, और किस चीज की रसीद है? इस 1 रुपए की। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मेरे मुतालबे पर 500 का अगर नोट है, मैं मुतालबा करता हूं तो वो एक एक रुपए के 500 नोट मुझे देने का पाबंद है। चूंकि अब नोट खत्म हो चुके हैं, 1 रुपए का नोट बंद कर दिया गया है, इसलिए अब एक एक रुपए के सिक्के देने के वो पाबंद है। अच्छा, मैं सिक्के। तो हाँ अगर मॉडर्न एजुकेशन के मुताबिक तो कहते हैं कि उस रिजर्व के मुताबिक डॉलर्स या सोने की कीमत, जी उसके मुकाबले में हमारी करेंसी बनती है। बनती है। तो अब चूंकि ये वाले तो नोट खत्म हो गए, ये खत्म हो गए। तो इसके इवज वो सोना देने के भी तो पाबंद है उतने रुपए का, यूं बिल्कुल वो, अगर पॉलिसी साजों लेकिन को। अगर सब लोग चले जाएं अपने अपने नोट लेकर, हम्म तो इतना सोना कहां से आएगा? ठीक है। ये जो अफरात ज़र है वो इसीलिए है ना कि हम अपनी पैदावार से, अपने सोने से बढ़कर नोट छाप नोट रहे हैं। छाप रहे हैं, ठीक है। जी हाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब कोई लास्ट मैसेज दे दें, सीएम साहबा को कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये 9वीं क्लास की जो, आप अभी तक 10th की तरफ तो आप पहुंचे नहीं है, आपने जी 9वीं पे हाथ साफ किया है, अब 10वीं में देखो कितनी गलतियां होती हैं, तो मैं उनको तो तमाम किताबों को देखना चाहता हूँ और ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक और उनसे आगे 11वीं 12वीं और आगे तक हायर एजुकेशन तक इन किताबों को बहुत देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये अ, तालिब इल्मों को पढ़ाई जा रही हैं। हम्म और ये जो इब्तदाई जमातें हैं, स्पेशली 5वीं से 10वीं जमात तक की किताबें, इन पर तो बहुत ही पढ़ा लिखा समझदार अमला तैनात किया जाए, हम्म जो एक एक सतर को गौर से पढ़े और तवज्जो से देखे हम्म, कि हम क्या पेश कर रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ेंगे। बिल्कुल मुझे ठीक। कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि निसाब जो है उसे दुरुस्त किया जाए, गलतियों से पाक और मुबर्रा करके बच्चों के सामने उसे दिया जाए, ताकि बच्चे उसे पढ़कर मुफीद और कारामद शहरी बन सके। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शहजाद फैजी साहब, जो कि माहिर लिसानियात हैं, शायर भी हैं, खुद शायरी भी करते हैं। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नाकों चने चबवा चुके हैं। ये जब इन्होंने उनके खिलाफ एक फैसला लिया जिस पर अभी तक अमल दरामद तो ना हो सका, लेकिन ये उस सिलसिले में भी अपना काम कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मजीद वीडियोज और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए सुनो न्यूज़ HD। अपने मेजबान शहीदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।